Now come back to question number 2 of exercise 7a. So you can read the question. D and E are 2 points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel BC. यहाँ पे DE parallel BC दिया हुआ है, तो सेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे सिंपली, नथिंग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है. तो AD अपॉन DB, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, AD और DB और AE अपॉन EC, तो वही वाला रेशियो यूज़ करेंगे. तो AE अपॉन उसके बाद EC. अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. AD का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, DB का x-2 एंड हेयर x+2 एंड here is 1 x-1. गेटिंग नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा x-2 इंटू x+2. अब इसके में आगे क्रॉस मल्टीप्लाई x² माइनस x, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b². ओके, now we can cancel x² with x² and minus x is equal to -4, so we can get x equal to 4. so यहाँ पे x का वैल्यू 4 आया है, तो पहले एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आया. now come back to the question number 2. so सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम थिंग है, नथिंग एल्स. स्टार्ट. so AD here, AD, now see the question, AD DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, सेम रेशियो यूज़ करेंगे. तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके, now putting the value we get AD is equal to 4 centimeter, DB is equal to x-4 is equal to AE 8 centimeter, 3x minus 19. now cross multiplying we get 4 3x minus 19 is equal to 8x minus 4, 12x minus 76, 8x minus 32. now we get here 12x minus 8x is equal to minus 32 plus 76 is equal to 4x और 4 and 4 we get x is equal to 40 divided by 4 is equal to 11 centimeter. so we get x equal to 11 here. now come back to the third question. now again using the Thil's theorem to make the ratio AD upon DB is equal to AE upon EC. okay, so using the equation now 7x minus 4 upon DB, we will use it, DB, and 3x plus 4 is equal to AE, which is 5x minus 2 upon 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7x minus 4 is equal to 3x plus 4 and 5x minus 2, 21x square minus 12x is equal to 15x square minus 6x plus 20x minus 8. नो सबको एक साइड लाते हैं, माइनस 15x स्क्वायर माइनस 12x, आई विल गेट प्लस 6x माइनस 20x इज इक्वल टू सॉरी प्लस 8 इज इक्वल टू 0. 6x स्क्वायर माइनस ये 12 6 26, 26x प्लस 8 is equal to 0. now we get 2 as a common, we will get a 3x square minus 13x plus 4 is equal to 0.
Now splitting the middle term, we get 4 3 is 12. So we will split is 12x minus x plus 4 is equal to 0. Taking 3x as common, 3x को कॉमन लेंगे और x minus 4 minus 1 again is common, x minus 4 बचेगा is equal to 0. 3x minus 1 and x minus 4 is equal to 0. Here we get x is equal to 1 by 3 and x is equal to 4. So we get x is equal to 4. Selecting this as answer, x is equal to 4. Now come back to question number 3 of exercise 7. Here given D, E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC. D and E points है AB और AC पे respectively. In each of the following cases determine whether D parallel. तो ये लगभग ऐसा केस है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन है, ठीक है. तो अगर AD अपॉन DB का रेशियो और AE अपॉन EC का रेशियो सेम आता है तो ये लाइन DE एंड BC पैरेलल होंगे. कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसके अनुसार. तो देखते हैं, रेशियो मिला कर देखते हैं. तो AD अपॉन DB वी गेट 5.7 बाई 9.5 and for AE upon EC we get 4.8 upon 8. Cancelling each other we get this one as 3 and 5, so we will get 3 by 5. 19 27, ठीक है. अब यहाँ से कटा 0, यहाँ भी 3/5 आएगा. 16 3 48 एंड 16 5 3/5. क्योंकि रेशियो दोनों का सेम आया है, मतलब AD अपॉन DB का रेशियो इज इक्वल टू AE अपॉन EC का रेशियो. दोनों का रेशियो क्या आया है? सेम आया है. इसीलिए लाइन क्या होगा? लाइन देयरफॉर सिंस देयरफॉर DE parallel to BC because by converse of Thales theorem, क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल्स था तो इसीलिए वो लाइन क्या हो गया? पैरेलल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में. अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे. नाउ यू कैन सी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. सो अगेन वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. या फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AB और AC, ये फुल लेंथ दिया हुआ है BD. तो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? AB अपॉन DB एंड सॉरी यहाँ पे ऊपर वाला लेंथ दिया हुआ है. तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं. एक सेकेंड, पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे जो भी टोटल लेंथ है. सो A B C D एंड E, टोटल लेंथ AB कितना दिया हुआ है? 11.7 सेंटीमीटर. AC कितना दिया हुआ है? 11.2 सेंटीमीटर. BD कितना दिया हुआ है? 6.5 सेंटीमीटर. एंड AE कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू दिया हुआ है. एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं पहले हम. तो हमको EC चाहिए, तो EC इज इक्वल टू क्या होगा? AC माइनस AE. फॉर द वैल्यू ऑफ AC 11.2 सेंटीमीटर माइनस AE 4.2 सेंटीमीटर. 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल एंड 7 सेंटीमीटर विल गेट. ठीक है, तो EC इज इक्वल टू हमको क्या मिला? 7 सेंटीमीटर. नाउ मेकिंग द रेशियो वी विल गेट AB upon DB and here we will get AC upon EC. Now getting the ratio 11.7 and 6.5 is equal to, यहाँ पे हो जाएगा AC का वैल्यू कितना है? 11.2 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. and when we will cancel out each other, this will be not equal to each other. So here AB by DB is not is equal to AC upon EC. अब यहाँ पे रेशियो इक्वल है ही नहीं,
रेशियो इक्वल रहेगा ही नहीं तो लाइन क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। देयरफॉर DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। तो इस कंडीशन में पैरेलल नहीं होगा सेकेंड इक्वेशन में। बाकी थर्ड और फोर्थ खुद से बना लेना। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7 है। यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है क्या क्वेश्चन, देखो पहले पढ़ो। इन ट्रायंगल ABC AD इज़ द बाइसेक्टर। मतलब AD क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों को ऑफ एंगल AB इतना दिया हुआ है, AC 8 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये किसका क्वेश्चन होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बार याद नहीं है तो रिवाइज कर लेते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी लाइन अगर अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो वो जो साइड का रेशियो है जो डिवाइड हुआ है, यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ है, BD अपॉन DC, वो एंगल कंटेनिंग साइड के इक्वल होगा रेशियो के। तो एंगल कंटेनिंग कौन था, एंगल A। तो इससे सटा हुआ साइड कौन है, ये वाला, मतलब कि AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये कहता है कौन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो AB अपॉन AB कितना है, 6.4, और DC सॉरी फॉर द BD कितना है, BD 5.6 है, और DC कितना है, DC वी हैव टू फाइंड इट। AB कितना है 6.4 एंड AC कितना है 8 सेंटीमीटर। सो क्लियरली दिस कटिंग 8 टाइम्स 0 विल बी देयर। सो 5.6 इंटू 10 अपॉन में 8 इज इक्वल टू DC। वी कैन गेट इट हेयर, 10 से 10 गया 8 7, तो DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो क्लियरली वी गेट DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नो इसके आगे भी क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं और वो लगभग सिमिलर ही हैं, तो इसी का यूज़ करके डायरेक्टली बना लेना। ठीक है, नो कम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AD इज़ द बाइसेक्टर, वही सेम क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन है। और AB दिया हुआ है कितना, दिस वन इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर एंड AC इज़ गिवन 14 सेंटीमीटर, BC इज़ गिवन 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेट BD इज़ इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो ये x बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस x, तो 6 माइनस x सेंटीमीटर। नाउ मेकिंग द रेशियो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, BD अपॉन DC इज़ इक्वल टू AB अपॉन AC। तो BD यहाँ पे क्या है, BD को x माने हैं और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस x हो चुका है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। AB कितना है 10 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 14 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 14x इज इक्वल टू 60 माइनस 10x। ना ये इधर आएगा तो 24x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 24। दिस वन विल बी 12×5 5 बार में, ये 2 बार में, तो इज इक्वल टू 2.5। तो BD इज इक्वल टू कितना है 2.5 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 6 माइनस 2.5। वी विल गेट इट एज 3.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ गया कितना, BD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो इसी तरह आगे का 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा।